मॉर्निंग. काल आपण काय बघितलं होतं बघा. कल हमने क्या देखा था, क्यूबॉइड के फार्मूले देखे थे. आज हमें देखना है कि सिलेंडर क्या है और सिलेंडर के फार्मूले. सिलेंडर, क्यूबॉइड, ये थ्री क्या है, 3D शेप्स है. अभी सिलेंडर मतलब क्या है पता है क्या किसी को? व्हाट इज सिलेंडर? दो फेस होते हैं, सर्कुलर और बॉडी है ना सर्कल. राइट, शाबाश. तो सर्कल इस टाइप का रहता है. सॉरी, व्हाट? सिलेंडर. सिलेंडर हैज 2 सरफेसेस और 3 सरफेसेस. सिलेंडर को सरफेस कितने हैं? 2. सिलेंडर मतलब क्या, यहाँ पे जो बेस है और ये जो टॉप है, ये दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, सेम इक्वल रहेंगे. और ये जो रहेगा कि नहीं, ये यहाँ से ये सेंटर वाला, ये इसको रहेगा परपेंडिकुलर. क्या रहेगा? परपेंडिकुलर. अगर ये थोड़ा भी हमने ऐसा टेढ़ा कर दिया इसको, मतलब ये ऐसा, ये भी सर्कल ही है, मतलब ये सिलेंडर नहीं है हमारा. ये सिलेंडर है क्या? ये नहीं रहेगा सिलेंडर. अब इसको नहीं सिलेंडर. तो ये राइट सर्कुलर नहीं है. यहाँ पे एंगल है क्या? 90 डिग्री का नहीं हो रहा है. तो ये सिलेंडर कौन सा है? इट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर. मतलब यहाँ पे ये एंगल कितने डिग्री का कर रहा है? 90 डिग्री का. सो दिस इज राइट सर्कुलर सिलेंडर. दिस इज नॉट राइट सर्कुलर. तो हमें कंसिडर कौन से करने हैं? सभी ऐसे ही कंसिडर करने हैं. आया समझ में? तो ये जो बॉटल दिख रही है आपको इनकी, अगर ये ऊपर का जो ऊपर भाग है, अगर ये मैंने नहीं दिखाया समझो आपको, तो ये जो दिख रहा है कि नहीं है, तो ये नीचे का पार्ट टोटल क्या है? ये सिलेंडर है. इसको ये एक सरफेस है नीचे वाला और दूसरा ये ऊपर वाला. हमें पेन ले सकते हैं इस एग्जांपल. तो ये पेन इज एन एग्जांपल ऑफ सिलेंडर. इट हैज टॉप सरफेस सर्कुलर, बॉटम सरफेस आल्सो सर्कुलर, and there one more surface is there in the middle which we called as circular, not circular, curved surface. So in cylinder total there are 3 surfaces. One top surface, bottom surface, both are equal, and one surface is in the middle which is curved. So total surfaces for cylinder are 3, right? So if you find total surface area of cylinder, total surface area of cylinder means, if total there are how many surfaces? 2. 3 surfaces. Find surface area of each surface and then add them. We get total surface area. Is it correct? Oh. So first find there are how many surfaces. So we find there are 3 surfaces. So this surface is circular. So area of this top surface is area of circle. And what is area of circle? Area of circle is pi r square. Similarly, this bottom surface is also circular and both are equal. Therefore its area also be pi r square. So pi r square plus pi r square, it is 2 pi r square. Yes. Now remaining is curved surface area. So what is curved surface area? You know, in circle, length from here, all length is called as circumference, right? So circumference is 2 pi r. Means all the length, boundary length is called as circumference, right? And let radius of this, what is r here? R means radius. So radius of this cylinder, here it is also r. And height, take height of the cylinder as h. So h be the height of cylinder, r be the radius of cylinder. पेज है क्या किसी के पास? एक्स्ट्रा पेज, रूलिंग पेज? आपको थोड़ा बताता हूं मैं कि कर्व सरफेस एरिया कैसे आया है. तो ये पूरी लेंथ मतलब क्या समझ में आया आपको? इट इज सर्कमफरेंस. हाँ ठीक है. गिव मी बुक. तो ये क्या है समझो, ये सिलेंडर हमने बनाया है, राइट? थोड़ा ऑब्जर्व करना है.
अगर ये सर्कल है हमारा, ये क्या है? सर्कल है, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ नॉट एंगल, सो टोटल लेंथ मीन इट्स सर्कमफरेंस एंड इट इज 2 पाया, राइट? सो दिस टोटल लेंथ मीन्स 2 पाया. You know rectangle? Yes. In rectangle there is length and breadth, and area of this rectangle means length into breadth. So suppose this is length means this is circumference of this circle, and height of cylinder is h. Height of cylinder is h, or this much area, this much length means 2 pi r. If I open it, it forms a rectangle. So this much length means this is 2 pi r, right? So this is a breadth, so it convert into 2 pi r, right? So it is, are you getting? So breadth, length, whatever, so it is 2 pi r, and this is height, so it is h. So h into 2 pi r means this total surface area, right? So this is curved surface area. So how we find? So this is length means it is 2 pi r, so 2 pi r multiply the height, so we will get area of this surface, and the surface is rectangle. So therefore b is not b, b is here h. So h into 2 pi r, right? So curved surface area is 2 pi r into h. So when we write curved surface area, we just remember this part, and this part means circumference means 2 pi r. So just multiply 2 pi r into h. So we get area not, हाँ, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया. समझ में आ रहा है क्या? ये अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो सिंपली याद रखो कि ये जो गोल पार्ट है ऊपर का, वो क्या है? सर्कमफरेंस, और वो क्या रहता है? 2 पाया. आपको सिर्फ दो ही फार्मूले याद रखने हैं, इसके फार्मूले याद रखने हैं, तो पाया, बाकी के पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर, बस. ये क्या है? एरिया है. ये क्या है? सर्कमफरेंस है, मतलब लेंथ. आपको ये लेंथ याद रखनी है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? हाइट से. तो ये क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया. आया समझ में? अभी टोटल सरफेस एरिया मतलब इन दोनों की क्या करनी है? एडिशन. तो ये 2 पाई आर स्क्वायर मतलब ये दोनों का एरिया, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर h. So what is common in both the terms? 2 pi r, here it is also 2 pi r. So take 2 pi r as common, here r plus h. So 2 pi r plus h. It is total surface area. Are you getting? Now write formula for curved surface area. Curved surface area means you all know now. This is first, right? What is this? This is circumference, and for circumference we use 2 pi r into height. It is now total surface area. Total surface area is write as it is, 2 pi r as it is. Instead of h, write r plus h. Both are same, only difference in their height. Here it is h, here it is r plus h. Or what is remaining? It's value. So value मतलब ये नीचे का जो सरफेस है, ये सभी इसको क्या बोलेंगे हमें? ये सर्कल का क्या हो जाएगा? इट इज एरिया. प्रूव दैट नहीं आ जाएगा, आपको फार्मूले लर्न करने. कैसे आया मैं मेरे मन से बता रहा हूँ. आया समझ में? तो ये नीचे का जो है सरफेस वो कैसा है? सर्कल. और उसका एरिया ले लो. क्या ले लो? इसका एरिया. ऐसे हम कितने रखेंगे इसके ऊपर? इसकी जितनी क्या है? हाइट है. तो एक हम रखेंगे इसके ऊपर ऐसा. तो एक सर्कल का एरिया कितना है? एरिया पाई आर स्क्वायर. तो नीचे समझो अपने क्या लिए, ऐसी कुछ भी एक गोल एक प्लेट ली है, बराबर. उसके ऊपर दूसरी प्लेट रखी, तीसरी रखी, ऐसे रखते रखते जाके क्या फॉर्म हो जाएगा? आपने कैरम देखा है क्या? कैरम को क्या बोलते हैं हम उसको? हाँ, गोटी. राइट, बराबर है. तो एक के ऊपर रख दी तो क्या हो जाएगा फॉर्म? सिलेंडर.
तो एक गोटी का एरिया मतलब सर्कल का एरिया, और ऐसे कितने करेंगे हम, हाइट जितने। तो जब आपको वॉल्यूम निकालना है तो फार्मूला याद रखना है किसका, एरिया का, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। जस्ट इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, जैसे हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व मींस एक्शन, रिमेंबर दिस एक्शन एंड दिस एक्शन मींस सर्कमफरेंस। तो सर्कमफरेंस इज 2 पाई आर इनटू h। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर, आर की जगह पे क्या करो r प्लस h। और वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए एरिया याद रखो, एरिया इनटू हाइट, एरिया इज पाई आर स्क्वायर इनटू h। हो गया, फिनिश। क्या डिफिकल्ट है ज्यादा नहीं। तो ये फार्मूले है उनके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। कल ये 2 फार्मूले देखे थे हमने, आज क्या देखना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम नॉट व्हाट इज सिलेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर का फिर कर्व सरफेस एरिया क्या, ये इंपॉर्टेंट है। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये ऊपर के दोनों नहीं आ जाए, तो क्या है ये, देखो 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया यहाँ से याद रखो, ये 2 पाई आर एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस एच, और यहाँ पे फिर बाद में क्या, अभी इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आ जाएगा इसका। तो जो एरिया है उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, हाइट से, हो जाएंगे। आया समझ में। अभी इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है कि कोण, थोड़े मैं फास्ट बताता हूँ क्या है कोण क्या नहीं, ये आपको ये याद रखने के लिए मैं इतना सारा बोल रहा हूँ ये क्या है। अभी डायरेक्टली थोड़ा बोल देता हूँ, आप बुक में सभी है ये। कितना टाइम है बाकी बहुत टाइम। आपको कौन पता है कि नहीं, कौन खाया भी होगा कभी, मेहंदी का कौन तो देखा होगा, कब, शादी में, शादी में दूल्हे लिखती ना, हाँ दूल्हे भी लिखती ना, दूल्हे नहीं लिखते, दूल्हे नहीं लिखते क्या, क्यों नहीं लिखते दूल्हे, क्योंकि दूल्हे, दूल्हे, दूल्हे सॉरी, अच्छा उनका नाम कहाँ लिखते हैं, हाँ ओके। सो व्हाट इज कोन, कोन is a 3D diagram look likes like this, look like, okay thank you, look like this। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ओके अच्छा बात। तो ये क्या है, कौन है, अभी इसको सरफेस कितने हैं, 3 है, मतलब एक दो एक है और एक सरफेस ये सरफेस है, है। कौन तो आपने देखा ही होगा, एक सरफेस है, सरफेस दो, सरफेस कितने हैं, थोड़ा बुक में ऐसा नहीं करना चाहिए अभी, बट हाँ पेज फाड़ा पर खाता था, क्या हरकत नहीं। तो कौन तो आपको याद आया ही होगा, थैंक यू, बस बस हो गया। ये क्या है समझो आपने, कौन, ओ ये खाए होंगे कि नहीं, क्या बोलते हैं आप उसको, खरमुरे। ये भी ऐसा, लेकिन ऊपर का जो रहता है कि नहीं, ये कैसा रहता है, ऐसा सर्कुलर सब रहता है। तो ये कौन है समझो, तो कौन को ये ऊपर ही एक सरफेस है ऊपर वाला, और ये दूसरा कौन सा है, कर्व सरफेस। ये नीचे वाला एज सर ये कंसीडर नहीं करना, इट इज अ पॉइंट। आया समझ में। तो सरफेस कितने हैं, सिर्फ 2 ही सरफेस है। तो ये जो ऊपर का सरफेस है समझो इसकी रेडियस कितनी है, r। आया समझ में। और इसकी जो ये हाइट, इसकी जो हाइट है इसको क्या बोलेंगे हम, ये हाइट है। एक ही सरफेस है इसको, 2 सरफेस है, एक ऊपर वाला और दूसरा एक कर्व, ये नीचे वाला नहीं। आया समझ में। इसकी रेडियस कितनी ली आपने, r, और हाइट कितनी ली, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एज ट्रायंगल की तरह, थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा आपको ये। और बुक में भी यही दिया है, इसकी रेडियस r, इसकी हाइट h। तो इसको हम बोलेंगे, ये जो हाइट है कि नहीं, यहाँ पे एंगल कितना करती है, तो दिस इज परपेंडिकुलर हाइट, दिस इज, और ये भी क्या है, हाइट ही है, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं है, ये कैसी है, स्लैंट है। स्लैंट मीन्स तिरकस, आड़ी, टेढ़ी आड़ी, टेढ़ी मतलब ओके, टेढ़ी मेढ़ी मतलब, हाँ तो ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई ना, तो आड़ी है सिर्फ, ये है आड़ी, इसको हम तिरकस भी बोलेंगे, विच इज नॉट परपेंडिकुलर। So this is perpendicular height, or this is slant height, and we denote slant height by L. So if you know, ये slant height है, अभी निकाल पाएंगे हम। ये जो है ये इतना ही बार देखो,
ये कितना है, ये ऐसा है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. इन राइट एंगल ट्रायंगल इफ यू नो टू साइड्स वी कैन फाइंड थर्ड साइड. ये दोनों देंगे आपको, उससे आप ये निकाल पाओगे. अब ये जो है कि नहीं, ये ट्रायंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल. यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, आर. तो आप ये निकाल सकते हो कि नहीं, एल. कैसे निकाल सकते हो, यू नो दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. आपको एल निकालना है तो दोनों तरफ का क्या ले लो, स्क्वायर रूट. तो ये अंडर रूट में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर. तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी. इसलिए आपको ट्रिपलेट याद रखने, ट्रिपलेट 3, अगर ये 4 है तो ये कितना आ जाएगा 5, इस तरह से. और ये क्यों आ जाएगा, तो यल का फार्मूला क्या हो गया फिर, तो जो यल है कि नहीं इसको अंडर रूट में लिखो, और ये किसके क्या ले लो, आर स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर. कैसे आया ये, बाय पाइथागोरस थ्योरम. यहां से मैंने बता दिया है, यल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर. देन वी गेट यल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर. यलचा स्क्वेअर रूट के असं या आरचा स्क्वेअर रूट ना डायरेक्ट ये सम इट्स एडिशन है, इसलिए हम डायरेक्टली इनको सेपरेट नहीं कर सकते. ये दोनों को ही क्या करना है, हाँ आया समझ में, रूट में. तो आप डायरेक्ट यल स्क्वायर इक्वल टू ये भी लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नहीं तो यल इक्वल टू अंडर रूट में. ये समझ में आया क्या बल्ला फार्मूला, आया समझ में. तो डायरेक्टली आई एम राइटिंग है formula for slant height. Now it is cone. Cylinder is over cone. तो cone को डायमेंशन कितने चाहिए आपको, r मालूम होनी चाहिए, हाइट मालूम होनी चाहिए. अगर ये दोनों पता है तो आप ये क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, बरोबर है. नहीं तो तीनों में से कोई से भी दो पता है तो बाकी के एक आप निकाल सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो पहले आपको निकालनी है स्लैंट हाइट. तो स्लैंट हाइट क्या है, स्लैंट हाइट ये है, और इसका फार्मूला क्या है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, राइट. सो देन आपको निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए डायरेक्टली बता दे रहा हूं मैं आपको, याद रखना है पाई आर यल. व्हाट इज यल, स्लैंट हाइट. तो यल पाई मींस 22/7 और आर, तो ये थोड़ा इतना याद रखना है, पाई आर यल. ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया. और जैसे हमने इसका सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया याद रखा था, ये 2 पाई आर, इसको मल्टीप्लाई कैसे किया था, और इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे याद रखा था, इसी से 2 पाई आर, और ये इसकी जगह रखा था आर प्लस. तो सेम यहाँ पे भी इसका टोटल सरफेस एरिया जो है तो ये आ जाएगा पाई आर यल की जगह पे क्या करना है, आर प्लस यल. बस यहाँ पे आर प्लस एस, यहाँ पे हाँ. अभी बाकी है इसका वैल्यू. तो समझो आपके पास इस टाइप की एक क्या है, कुछ वेसल है इस टाइप का. और आपने क्या किया है, यह थोड़ा ध्यान देना है, आपने एक सिलेंडर लिया है और एक क्या लिया है, कोन. और दोनों भी किस प्रकार के लिए है, इस प्रकार के लिए है कि इसकी जो रेडियस है उतनी ही रेडियस किसकी लिए आपने, कोन की. समझो इसकी रेडियस आर है तो इसकी भी कितनी ली आपने, आर. और इस सिलेंडर की हाइट जितनी है वो हम ये चलेंगे, उतनी ही हाइट किसकी लेंगे, इसकी. So both cylinder and cone have equal radius and height. तो अगर आपने क्या किया, इसमें पानी भरा, क्या भरा, पानी, और इसमें डाल दिया, ये कंप्लीटली फुलफिल हो जाएगा क्या, दूसरा डाल दिया, क्योंकि दूसरा डाल दिया मैंने, और तो इसमें जितना पानी है उसको उसकी कैपेसिटी बोलेंगे. तो एक डाल दिया, फुलफिल तो डेफिनेटली नहीं होगा. दूसरा डाला तो आपको सवाल है होगा कि नहीं होगा. तो ये प्रैक्टिकल रहते जो आपको स्कूल में करने पड़ते हैं, तो ये उन्होंने किए हैं, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं. तो ऐसे कितने यहाँ पे डालने पड़ेंगे फुल भर के कि ये फुल हो जाएगा. तो पहला डाल दिया तो फुल तो नहीं होगा, दूसरा डाल दिया तो भी फुल होगा क्या, नहीं. तो कंप्लीटली ऐसे कोन यहाँ कितने डालने पड़ेंगे, 3, तब ये क्या होगा, कंप्लीटली फुलफिल. मतलब इसकी कैपेसिटी, सिलेंडर की कैपेसिटी कोन की कैपेसिटी से क्या है, ज्यादा है. और कितनी गुना है, 3 गुना है. 3 हम डाल रहे हैं. तो इसका उल्टा भी बता सकते हैं आप. मैं अगर बोलूंगा ए बी से क्या है, बड़ा है, तो बी ए से क्या होगा, अगर ये 2 साल से बड़ा है तो ये 2 साल से क्या होगा, छोटा होगा. बराबर है कि नहीं. तो इसीलिए अगर ये 3 गुना है तो ये उसके मतलब ये 3 टाइम्स है तो इसके 1/3 टाइम्स होगा डिवीजन. आया समझ में. सो
वॉल्यूम ऑफ कोन इज, ये जो इसका वैल्यूम है, किसका वैल्यूम है? सिलेंडर का। सिलेंडर का वैल्यूम याद रखने के लिए आपको एरिया याद रखना, एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू एच, दिस इज वैल्यूम ऑफ सिलेंडर। एंड आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/3 से। 1/3 से क्यों मल्टीप्लाई करना है? 1/3 से क्यों मल्टी, क्योंकि ये इसके 1/3 टाइम्स है, ये कम है, 1/3 में कम। सो वैल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 टाइम्स ऑफ वैल्यूम ऑफ, ये समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो पहले के याद रखने, ये याद आ जाएंगे। तो ये इतने फार्मूले हैं, इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये समझ में आ रहा है। इट इज वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, वी डिवाइड इट बाय 1 मतलब मल्टीप्लाई 1/3, वी गेट वैल्यूम ऑफ। आया समझ में? अभी बचा है स्पेयर, अभी क्या बचा है? स्पेयर। तो ये फार्मूले समझ में आए क्या ये? ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? हाँ, क्या ये कोन, कोन के फार्मूले क्या है? पहले तो स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट मतलब क्या? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद में कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, इतना ही है। टोटल सरफेस एरिया एज इट इज पाई आर आर प्लस एल। और उसके बाद में इसका वैल्यूम, जो वैल्यूम किसका है? कोन का है, सॉरी, पाई आर स्क्वायर एच, इसका क्या लेना है? 1/3। आया समझ में? अभी है स्फीयर, अभी क्या है? स्फीयर। तो बहुत आसान है। स्फीयर आपने देखा भी होगा, क्रिकेट आप सब जन खेलते होंगे, आपने बॉल देखा होगा वो। और स्फीयर के भी दो टाइप है। स्फीयर के कितने टाइप है? दो टाइप। जल्दी से आपको समझ में आ जाएंगे वो भी। तो स्फीयर तो पता है आपको, गोल है, गोल रहता है, 3D शेप है। तो अगर मैंने ये स्फीयर लिया है, अभी मैं स्फीयर जो निकालूंगा वो सर्कल की तरह ही दिखाई देगा, लेकिन सर्कल में और स्फीयर में क्या है? फर्क है। तो ये हो जाएगा हमारा स्फीयर। बॉल समझो, फुटबॉल देखा है आपने, वो भी है। तो स्फीयर के दो टाइप कौन से हैं? अभी क्रिकेट का बॉल देखा है, क्रिकेट का बॉल खेलते खेलते कभी फुट गया है कि नहीं? क्या है, पहली बार लिया था वो फुटा ही नहीं, हम खेलते जा रहे हैं उससे, नहीं हो रहा, बराबर है कि नहीं? कोई कोई इतने भारी बैटर रहे थे, एक शॉट मार दिया, बॉल खत्म, फिर 2 घंटे तक मैच बंद। हमारी मैच बारिश से नहीं बंद होती है, किससे बंद होती है? बॉल नहीं है, बैट नहीं है, प्लेयर की कुछ कमी नहीं है, सभी के सभी कौन है? बैटर ही है। तो ये क्या है? स्फीयर है। समझो क्रिकेट खेलते समय बॉल क्या हो गया है? गुम नहीं होगा, फुट गया है। फिर ये जो हमारे है, कौन, नाम क्या है इनका? नागेश। उन्होंने देखा बॉल के अंदर रहता क्या है, इतना उछलता है ये। उन्होंने देखा बॉल के अंदर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या थी? हवा थी। अब जो भी क्या हो गई है, अभी निकल गई है। नहीं समझ में आ रहा है? तो और ये दिवाली में फिर से चला गया, गांव को गया था। कितने दिन था गांव में? 1 दिन। उसको रीजन पूछा तो बताया उसने, मम्मी ने बहुत सारे लाडू करके रखे थे, अगर मैं यहाँ आ गया तो वो कौन खाएगा उधर के? तो लाडू खाने के लिए क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। तो उसने तोड़ के लाडू के अंदर देखा, तो लाडू के अंदर क्या थी? हवा थी क्या? वहां और भी क्या था? मटेरियल था। तो लाडू भी एक क्या है? स्पेयर है। बॉल भी क्या है? एक। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एक भरा हुआ है, एक खुला हुआ है। तो जो खुला है उसको बोलेंगे हॉलो स्फीयर। क्या बोलेंगे? हॉलो स्फीयर। और जिसके अंदर कुछ ना कुछ है उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड स्फीयर। तो जब आपको स्फीयर बोलेंगे तो स्फीयर कौन सा भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका ऊपरी सरफेस तो उतना ही रहेगा, बराबर है। जब लेकिन हम उसको आधा करेंगे तब चेंजेस हो सकते हैं, वेदर इट इज हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, बराबर है। तो पहले जो स्फीयर हम कंसीडर करेंगे वो कौन सा भी रह सकता है, आइदर इट इज हॉलो और सॉलिड। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो समझो अभी ये समझने के लिए आपने 4 सर्कल लिए। क्या सर्कल लिए? 4 सर्कल। सर्कल कैसे? ये। और 4 सर्कल से एक क्या फॉर्म होता है? स्फीयर। 4 सर्कल बनाने के, 4 सर्कल फॉर्म करने के लिए जितना एरिया लगता है, ये इतना एरिया, 4 सर्कल बनाने के लिए जितना एरिया लगता है ये, और चारों भी क्या चाहिए? कॉन्ग्रुएंट। चारों भी सर्कल कैसे चाहिए? कॉन्ग्रुएंट। मतलब आपने 4 सर्कल लिए तो 4 सर्कल से एक क्या फॉर्म होगा? स्फीयर फॉर्म होगा। फॉर्म होगा मतलब सिर्फ ऊपर ही भागा, अंदर हमें कुछ पता नहीं, वो हॉलो भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इतना याद रखो, एक स्फीयर बनाने के लिए
कितने सर्कल चाहिए? 4। मतलब और एक का एरिया कितना रहता है? तो चारों का एरिया, तो ये चारों मिलके क्या फॉर्म हो रहा है? स्फीयर। तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा फिर? हो गया। अभी इसका वॉल्यूम याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? बहुत आसान है, ये एज इट इज लिख दो, 4 पाई आर। ये क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है कि नहीं, इसको क्या कर दो? क्यूब। ये 4 के नीचे भी कितना रखो? 3। हो गया फॉर्मूला। आया क्या समझ में? ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए, फिर फॉर्मूला क्या है ज्यादा? स्क्वायर 4 सर्कल लगते हैं बनाने के लिए, तो एक का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो टोटल का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। आया क्या समझ में? और इसको ही हमने ऐसे लिखा है, इसके नीचे 3, इसका पावर भी 3। अभी बचा कौन है? हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर मींस, सॉरी हेमिस्फीयर लेंगे हम। क्या लेंगे? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मींस सेमी सर्कल देखा होगा आपने, सर्कल को कट किया सेमी सर्कल, स्फीयर को कट किया हेमिस्फीयर, बराबर है। तो भी सर्कल हमने कट किया, तो अभी कट करने के बाद डिपेंड करता है कि ये है कौन सा। तो यह है कौन सा हम कंसीडर करेंगे? इट इज हॉलो। ये कौन सा है? हॉलो। तो हॉलो है, तो यहाँ के ऊपर पे एक सरफेस फॉर्म होगा क्या फिर? हॉलो। हॉलो मींस उसके अंदर, हाँ पोकल, उसके अंदर कुछ नहीं है। तो जब बॉल कट फुट हो जाएगा, मतलब फूटेगा, तो उसके ऊपर एक स्फीयर सरफेस फॉर्म होगा क्या? नहीं होगा फॉर्म, वो खुला ही रहेगा वादी की तरह। हाँ, हम उसके अंदर हाथ डाल सकते हैं ऐसा, बराबर है। तो ऊपर सरफेस होगा क्या? फॉर्म नहीं होगा। तो फिर उसको सरफेस कितना? एक ही सरफेस है, कर्व सरफेस, वो भी आधा, ये हाँ बराबर है। तो ये टोटल स्फीयर है, अगर इसका आपने हाफ लिया तो इसका सरफेस एरिया भी कितना हो जाएगा? हाफ। और टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, तो हाफ कितना होगा? 2 पाई आर। हो गया, सिंपल है। अब इसका वैल्यूम भी इसके आधे होगा, तो यहाँ 4 है, तो 4 की जगह पे क्या कर दो? सिर्फ 2 कर दो, तो 2/3 पाई आर क्यूब। कुछ डिफिकल्ट है क्या ये? नहीं। अभी हेमिस्फीयर में कौन सा ले लो आप? सॉलिड। कौन सा ले लो? सॉलिड हेमिस्फीयर। अभी जब सॉलिड हेमिस्फीयर लोगे तो उसके ऊपर भी क्या फॉर्म होगा? लेयर फॉर्म होगा। लाडू आपने कट किया है, तो उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म होगा कि नहीं? तो लेयर भी हमें कंसीडर करना पड़ता है एज अ सरफेस। लेकिन वो सरफेस है किस टाइप का? सर्कल का ही होगा ये सरफेस। तो इसकी भी रेडियस आर है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और इसका कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस, तो पाई आर स्क्वायर, और ये ऊपर का एक पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो सॉलिड के इसमें टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। समझ में आएगी नहीं? तो स्फीयर का आसान है। तो एक स्फीयर बनाने के लिए कितने सर्कल? 4। तो एक का एरिया पाई आर स्क्वायर, चारों का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। फिर 4 को डिवाइड करो 3 से, यहाँ पावर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अभी हॉलो स्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब आधा। तो आधे स्फीयर में 2 टाइप, एक हॉलो एक सॉलिड। मतलब इसके ऊपर सरफेस होगा, एक के ऊपर सरफेस नहीं होगा। इस प्रकार का आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पे भी क्या होगा? फिर सरफेस होगा। तो ये सरफेस मीन्स पाई आर स्क्वायर एरिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगी। इतने फार्मूले हैं, आपको लर्न करने हैं, मैंने बता दिए हैं। ये कितने हैं टोटल? 2, 2, 4 और ये 3, 7 तो यहाँ हो जाएंगे। सिलेंडर के याद किए तो क्यूब के आ जाएंगे। तो ये फार्मूले हो गए हैं। कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो विनती है कि आप सभी जन लर्न करके आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।